Bismillahirrahmanirrahim. In previous lecture, we have discussed the different levels of management. Also, we have discussed the uh, manager, okay, role of manager, responsibility. Also, we have discussed in detail the different function, roles, qualities, and functions of a leader. Okay, and we have discussed the comparison between the manager and leader. Today we will discuss some more fundamentals of management, which are about the selecting a project manager. Okay, suppose if you have an organization, if you are entrepreneur of your business, okay, or suppose if you are the head of a project, so how you will select a project manager? Okay, what qualities you will be looking in a person to appoint uh, the person as a project manager? Okay, and also we will discuss the common characteristics of a most effective team. Remember, uh, हम ये जो terminologies या ये जो fundamentals discuss कर रहे हैं, you will have to keep in mind the concept and definition of management. ठीक है? See, in management, actually we are planning and utilizing the available resources to get the maximum benefits. Okay, आपने manage करना होता है. So for that management, how you will hire the project manager? Yeah, suppose if you are working in a project, suppose अगर आप एक team में काम कर रहे हैं, so what will be the characteristics of the most effective team? Okay, suppose अगर आप लोगों का एक लेबोरेटरी कोर्स में एक ग्रुप होता है, ठीक है, या अगर सपोज जॉब आप कर रहे हो और इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन में आप एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो टीम जो है वो कब इफेक्टिव होगा, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है. Also, then we will discuss the relationship versus task management. Again, that is based on the behavior of the manager. Okay, कि एक मैनेजर जो है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है या टास्क ओरिएंटेड है. ठीक है, and then we will discuss the difference between the project and program, and also the project life cycle, कि एक प्रोजेक्ट किस तरह इनिशिएट होता है, फिर उसकी इंटरमीडिएट में क्या होता है, फिर किस तरह वो प्रोजेक्ट जो है वो क्लोज हो जाता है. ठीक है, तो हमारे पास एक लाइफ साइकिल होता है प्रोजेक्ट का. नाउ सी, selecting a project manager, remember, before the starting of the project, it is critical that the right project manager be selected. Okay, suppose अगर आप एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक गोल होगा. So to achieve that goal and objective effectively and efficiently, you will have to select the right project manager. Okay, so that is the job of the higher management. जिस तरह हमने 3 लेवल डिस्कस की है ना मैनेजमेंट की. So जो टॉप लेवल मैनेजर्स है, सीईओज जो है, डायरेक्टर्स जो है, they can select the project manager. Okay, and see, there are many things which will be considered. Experience with the customer. ठीक है, सपोज अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर सेलेक्ट कर रहे हैं, सो यू विल हैव टू लुक फॉर मेनी थिंग्स इन द पर्सन. फॉर एग्जांपल, एक्सपीरियंस विद द कस्टमर, कि वो कस्टमर के साथ उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो किस तरह उनके साथ डील करेगा, किस तरह उनका बिहेव होगा. ठीक है, एक्सपीरियंस विद द प्रपोज्ड सोल्यूशन. जो पर्सन आप हायर करेंगे ना, तो उसके लिए आपने ये देखना है तो इसकी कस्टमर के साथ एक्सपीरियंस कितना है, किस और कैसा है, एंड हाउ मच इज द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन विद द प्रपोज सॉल्यूशन. जिस प्रोजेक्ट के लिए या जिस एक्टिविटी के लिए आप प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर कर रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस क्या है बेस्ड ऑन दैट सॉल्यूशन, बेस्ड ऑन दैट एक्टिविटी. ठीक है, एंड आल्सो यू विल हैव टू लुक ऑन द एक्सपर्टीज इन द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. ठीक है, कि सपोज अगर आप एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम टेक्निकल नॉलेज विल बी रिक्वायर्ड.
So you will have to look for the expertise in a particular technology, okay, and also the experience are required with the proposed project team. ठीक है, सपोज कि जिस प्रोजेक्ट में जो टीम होगा उसकी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होंगे, एक्सपर्टीज इन द टेक्नोलॉजी विल बी रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस विद द प्रपोज सोल्यूशन, एक्सपीरियंस विद द कस्टमर डीलिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, इन चीजों को आपने देखना होगा इफ यू सपोज यू आर हायरिंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, या एक ऑर्गेनाइजेशन अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो हायर करते हैं तो उनको वो ये चीजें देखते हैं उसमें। ठीक है, and see this is most important step, that the qualities of the project manager can have a direct impact on the outcome of the project। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर का जो क्वालिटीज है या उसका जो एक्सपर्टीज है एंड एक्सपीरियंस है, दे कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट्स या द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, आफ्टर ऑल जो मेनी क्वालिफाइड पीपल होते हैं, दे कैन डू द मैकेनिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, बट वो एज अ प्रोजेक्ट लीडर नहीं हो सकते। ठीक है, एक बंदा इस तरह होगा ना कि वो टेक्निकली स्ट्रांग होगा लेकिन वो वर्बली एनवायरमेंटली वो स्ट्रांग नहीं होगा कस्टमर के साथ, टीम के साथ। ठीक है, तो बैलेंस पर्सन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, दैट द टेक्निकली कॉम्पिटेंट पर्सन जो होता है, टेक्निकली कॉम्पिटेंट, सपोज अगर बहुत ज्यादा नॉलेज है उसके पास, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट प्रोजेक्ट लीडर भी होगा। सो द प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसमें आपने लीडर की क्वालिटीज को भी देखने हैं, डीलिंग की क्वालिटीज देखनी है, एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस उनका देखना है, सोशल एक्सपीरियंस देखना है, कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस देखना है। ठीक है, सो जो इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं जिसकी बेस पे प्रोजेक्ट मैनेजर सेलेक्ट करता है, उसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज द एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, दैट इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक दैट इज यूज्ड इन सपोज काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। Okay, so suppose if a project manager is selected, yeah, if an organization is selecting a project, so the project manager must be active listening personality। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है, ये एक कम्युनिकेशन टेक्निक है। ठीक है, कि वो पर्सन जो है वो काउंसलिंग किस तरह करेगा, हाउ द पर्सन विल ट्रेन द अदर पर्सन एंड हाउ ही विल या शी विल सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। ओके, कि उसकी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एबिलिटी कितनी है। एंड दिस इज रिक्वायर्ड दैट द लिसनर फुली कंसंट्रेट, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्स एंड रिमेंबर। ठीक है, जो मैनेजर है ना उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट प्रॉपरली अंडरस्टैंड द थिंग्स, कंसंट्रेट ऑन इट, रिस्पॉन्ड ऑन इट एंड विल रिमेंबर इट। Okay, so this is one of the skill required for the project manager selection. Second one is the business orientation. See, the project manager must be focused on discovering and meeting the needs and desire of the project. ठीक है, जिस प्रोजेक्ट के लिए या जिस बिजनेस के लिए, जिस एक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट बी बिजनेस ओरिएंटेड। मीन the project manager will focus on discovering and meeting the needs and desire of the project। ठीक है, थर्ड जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं दैट इज द कोचिंग। कोचिंग मीन सपोर्टिंग द लर्नर्स। सपोज प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा वो एक लीडर होगा ना अपनी टीम का, वो अपनी टीम को मैनेज कर रहा होगा। सो इफ देयर इज समवन हु वांट टू लर्न, so then the manager must be support the learners or clients to achieve goals। ठीक है, most important skill जो है that is the communication। Again, as we have discussed that a person will be technically too much experience, but they will not express his idea or knowledge or communicate his information। Communication जो है that is exchanging of information। ठीक है, either by speaking, writing or using some other method, that how you are exchanging the information with others।
सो अदर्स में फिर बॉसेस भी आ जाते हैं, टीम के मैनेजर के टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं, क्लाइंट्स भी आ जाते हैं, कस्टमर्स भी आ जाते हैं. सो दिस स्किल मस्ट बी रिक्वायर्ड इन अ प्रोजेक्ट मैनेजर टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट जो स्किल रिक्वायर्ड होता है दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. ठीक है, सपोज इफ देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट among the team members, so this skill will be required for a project manager to find a peaceful solution to the disagreement. Okay, suppose if there is personal conflict among the members, financial conflict, or if there is emotional conflict, तो प्रोजेक्ट मैनेजर में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व कर लें. ठीक है, क्रॉस फंक्शनल थिंकिंग है, दैट इज वर्किंग विद डिफरेंट फंक्शनल एक्सपर्टीज. ठीक है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ये एक जनरल पोस्ट होता है ना. सो ये नहीं है कि द प्रोजेक्ट मैनेजर विल थिंक ओनली इन वन डायरेक्शन. ठीक है, वो जो है वो मल्टी डायरेक्शनल होगा. ठीक है, द प्रोजेक्ट मैनेजर विल वर्क विद डिफरेंट फंक्शनल एक्सपर्टीज टुवर्ड द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट. अनदर फैक्टर जो है दैट इज द कस्टमर ओरिएंटेशन. आल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन द स्टार्ट दैट whenever an organization is selecting a project manager, so they are looking in experience with the customer. ठीक है, कि उस पर्सन की एक्सपीरियंस कितनी है, कस्टमर ओरिएंटेशन कितना है, मीन हेल्पिंग द कस्टमर टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स. जब भी आप एक प्रोजेक्ट करते हैं ना, वो किसी की जरूरत को आप सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं. ठीक है, सो हाउ द प्रोजेक्ट मैनेजर विल हेल्प द कस्टमर to meet their needs and wants. Next जो है that is delegation. ठीक है, that is the we can say that responsibility or authority to another person. ठीक है, सपोज अगर उसकी अंडर कोई काम कर रहे हैं तो आप उनको अथॉरिटी दे दे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं. सो दैट इज आल्सो अ स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन, दैट हाउ the project manager will give the responsibility and authority to another person to carry out the given specific activity. ठीक है, next skill जो required है that is facilitation, in encouraging the open communication among the group members. ठीक है, mean to facilitate the team member, active listening of the team member, report building, रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स. इसको फैसिलिटेशन कहता है कि आप अपने जो टीम मेंबर्स है ना उसको आप फैसिलिटेट कर ले. तो इधर जनरली आप इस तरह भी कह सकते हैं ना कि सपोज आप ओपन कम्युनिकेशन को इनकरेज कर ले among योर ग्रुप मेंबर्स, उसको एक्टिवली लेसन कर ले, उसकी रिपोर्ट बिल्डिंग कर ले, इसको फैसिलिटेशन कहते हैं. ठीक है, टू फैसिलिटेट अदर्स. मीडिएशन है, a skill required for selecting a project manager. That is एक interactive process होता है. ठीक है, where you will have to deal as a neutral person. ठीक है, सपोज अगर कोई अगेन कोई conflict आ जाए, ठीक है, कोई disputation आ जाए, so you will have to solve it as a third party. Neutral आपने behave करना होगा. ठीक है, again that is linked with the communication. If you have strong communication skill, then you can solve the conflicts among the different parties. Okay, अगर उनमें कोई conflict आ जाए. Meeting management है, again being a project manager, that is the responsibility of the project manager to run meetings effectively. मीटिंग के लिए एजेंडा तैयार करना, फिर मीटिंग को स्टार्ट करना. ठीक है, एजेंडा आइटम्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना, फिर मीटिंग की जो मिनट्स होते हैं उसको लिखना. ठीक है, टू रन मीटिंग इफेक्टिवली, ये भी एक स्किल होनी चाहिए. सिमिलरली नेगोशिएशन है, अगेन दैट इज द डिस्कशन. ठीक है, टू रीच द
agreement between two parties. Suppose if you are the project manager for an organization, so you will have to deal with the customers and clients. ठीक है, कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनसे प्रोजेक्ट ले लें, तो निगोशिएशन की स्किल्स होनी चाहिए. ठीक है. अनदर स्किल जो है दैट इज नेटवर्किंग. सो अगेन नेटवर्किंग मीन मार्केटिंग भी आप कह सकते हैं उसको. ठीक है, या डेवलपिंग दी या इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप किस तरह लिंक्स बनाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की दूसरे लोगों के साथ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कस्टमर्स के साथ. नेटवर्क. ठीक है. पॉलिटिकल पावर ऑफ परसुएशन है, दैट इज वॉलंटरियली चेंजिंग द बिलीफ. ठीक है. सपोज अगर अगेन टीम में अगर एक बंदा है वो काम नहीं कर रहा, उसका एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है, तो या उसको आप किस तरह चेंज करेंगे, किस तरह आप किसी पर्सन को इम्प्रेस करेंगे, उसको किस तरह आप जो है क्या कहते हैं उसको, इम्प्रेस भी कर सकते हैं. ठीक है, इम्प्रेस किस तरह करेंगे, उसकी माइंड या बिलीफ या एक्शन आप किस तरह चेंज करेंगे. अगर सपोज अगर एक बंदा है ना, वो गलत काम कर रहा है, एक्टिविटी जो है गलत कर रही है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ठीक नहीं कर रहा, तो आप इसको एक्टिवली किस तरह उसको चेंज करेंगे. इस तरह नहीं है कि आप उसको कह दे कि मैं उसको जॉब से निकाल दूंगा और ये करूंगा, ये नहीं. ठीक है, सॉफ्ट मैनर से. प्रियोरिटी सेटिंग है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर. ठीक है, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू विल हैव टू डू द राइट जॉब एट द राइट टाइम. ठीक है. सो दैट इज टू सेट द लेवल ऑफ द एक्टिविटी. ठीक है, कि सपोज अगर एक एक्टिविटी है ना, तो फर्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट पीरियरिटी क्या है, सेकंड पीरियरिटी क्या है. ठीक है. सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट है, दैट इज सपोज इफ यू हैव completed your project, yeah, you have completed your product. Now how you will we can say that transfer it to the customers. Again, you will have to create a plan, you will have to use the project management tool. ठीक है, keeping the social relationships. ठीक है. टीम बिल्डिंग है, अगेन ये एक स्किल है. सपोज अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो बाकी बंदे फिर आपने हायर करने होंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए. सो यू विल हैव टू सेलेक्ट या यू विल हैव टू कलेक्ट द पीपल फॉर द राइट एक्टिविटीज. ठीक है. और लास्ट वन जो है दैट इज द टाइम मैनेजमेंट. अगेन दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एक्सरसाइजिंग द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ टाइम. ठीक है, कि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे कितना टाइम आपने स्पेंड करना है. अगेन यू विल हैव टू प्रिपेयर अ शेड्यूल. ठीक है, टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, कि कम वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी गेन कर लें फ्रॉम द टीम मेंबर्स, फ्रॉम द रिसोर्सेज. ठीक है. So these are the different skills which are required. Again, suppose अगर आप लोग जो है as a project manager किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, so आप लोगों में ये स्किल्स होनी चाहिए. एक्टिव लिसनिंग, बिजनेस ओरिएंटेशन, कोचिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, क्रॉस फंक्शनल थिंकिंग. ठीक है, कस्टमर ओरिएंटेशन, डेलीगेशन, फैसिलिटेशन, मीटिंग मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, priority setting, team building. क्लियर, समझ आ रहे? एक्सक्यूज मी सर. जी. सर ये जितने भी इसके स्किल्स है ये प्रोजेक्ट मैनेजर की, तो सर ये तो कुछ लोगों में होती है और कुछ लोग ऑन फील्ड को गेन करते हैं. तो जी. फिर ये अगर हम देखें पाकिस्तान में या इस तरह से लोग हाँ. तो उसमें से मुंतखब करते हैं उन लोगों को जिनके पास एक्सपीरियंस होती है, और एक्सपीरियंस तो हर किसी के पास नहीं होती है. हाँ. तो वो सर क्यों? एक कोट है ना, एक्सपीरियंस कब आ जाते हैं? सर जी. जब जब एक्सपेरिमेंटल उसको कोई गेन हो जाता है ऑन फील्ड या सपोज अगर
एक साल डायरेक्ट जो है आप प्रोजेक्ट मैनेजर पे नहीं जा सकते। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, लोअर लेवल से स्टार्ट करना होगा। जब लोअर लेवल पे आप काम करें तो आपने ये देखना होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है। आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ये इफेक्टिव है, ये नॉट इफेक्टिव है, ये प्रोडक्टिव है, ये नॉट प्रोडक्टिव है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोडक्टिव है अब उसके साथ डीलिंग कर लें। और प्रोजेक्ट मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है that the project manager will encourage the learner, support the learner, वो कोचिंग करेगा। तो 1-2 साल अगर आप उसके साथ गुजारेंगे तो आपकी थोड़ी सी एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सपोज अगर बिग स्टूडेंट्स, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा जॉब क्या होगा। So these are the requirements for a project manager कि उसमें ये skills होनी चाहिए। And as we have discussed कि effective project manager कब होगा, when the person have expertise in the technology, technical knowledge must required है, experience with the customer या social। See previous lecture में आपने वो हमने एक डायग्राम डिस्कस किया था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की कंसेप्चुअल स्किल क्या होनी चाहिए, टेक्निकल क्या होनी चाहिए और सोशल क्या होनी चाहिए। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर की अगर आप देखें वो इक्वली रिक्वायरमेंट उनका होता है। इस तरह नहीं है कि आपके 100% टेक्निकल स्किल्स हो, ठीक है, आपके पास सोशल और कंसेप्चुअल स्किल्स ना हो, मीन इक्वली स्किल्स प्रोजेक्ट मैनेजर में होनी चाहिए। अब सपोज अगर एक बंदा है, जाहिर बात है वो एक साइड पे ज्यादा स्ट्रांग होगा, दूसरी साइड पे वीक स्ट्रांग होगा, वीक होगा, लेकिन एटलीस्ट इन स्किल्स के बारे में उनको आइडिया होना चाहिए। दैट सपोज कल अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर है तो व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ठीक है, क्लियर। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, now let's discuss the characteristics of a most effective team. Now suppose if you are at any level, either you are project manager or assistant manager or site manager, or suppose you are engineer or you are a labor or you are a worker, so ये is a team होगा। फिर तो पूरा टीम कब इफेक्टिव होगा, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देयर आर 10 characteristics for a successful प्रोजेक्ट टीम। और एक ग्रुप होता है किसी एक्टिविटी के लिए। सपोज अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और 5 बंदों का ग्रुप बन जाता है, ठीक है, तो वो ग्रुप कब इफेक्टिव होगा। या अगर एक प्रोजेक्ट के लिए लोग जमा हो जाते हैं वो कब इफेक्टिव होगा। उसमें डिफरेंट लेवल्स के लोग होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, इंजीनियर्स होंगे, लेबर्स होंगे, टेक्निकल पर्सन होंगे, ड्राइवर्स होंगे, हेल्पर्स होंगे, लेकिन ये एक टीम है, ठीक है। तो वो टीम जो है वो कब इफेक्टिव होगा, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि दिस टीम इज हाई परफॉर्मिंग टीम या स्मूथली रनिंग टीम है, उनका काम जो है अच्छा जा रहा है, परफॉर्मेंस उनका अच्छा है। तो ये सिंगल पर्सन नहीं जॉब नहीं होता, ये इज अ टीम आउटपुट होता है, ठीक है। सो सी अगेन, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बॉन्ड होना चाहिए between the team members, strong trust bond, and working cooperatively, that will working cooperatively to achieve the project goal, okay, that will lead the team is the most effective team। ये वो टीम मोस्ट इफेक्टिव होगा if there is strong trust bond, if they are working cooperatively with each other, ओके। सी अगर प्रोजेक्ट मैनेजर सक्सेसफुल नहीं है लेकिन अगर टीम इफेक्टिव है, गोल और ऑब्जेक्टिव इफिशिएंट और इफेक्टिव होगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ द टीम में बात कर रहा हूं। सपोज अगर ओवरऑल टीम इफेक्टिव है, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन टीम इफेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इफेक्टिव होगा। अक्सर क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर फेवरली इफेक्टिव होगा, सक्सेसफुल होगा, लेकिन उनके साथ टीम अच्छा नहीं होता, तो इंपैक्ट कहां पे जाता है, गोल पे, ऑब्जेक्टिव पे, परफॉर्मेंस पे, ठीक है। सो जितना हमने डिस्कस की कि प्रोजेक्ट मैनेजर की जो इंपॉर्टेंस है उतनी इंपॉर्टेंस ओवरऑल टीम की भी है, ठीक है। सो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है,
that is the clearly defined goal. To each and every member, the goal must be clearly defined. ठीक है, अगर एक बंदा एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है ना, तो उसको ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. So clearly defined goals are essential so that everyone understand the purpose and vision of the team. कि हम जो टीम में काम करें, हमारा पर्पस क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा गोल क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं. अगर मेंबर्स को पता ना हो तो फिर वो इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता. ठीक है. सो क्लियरली डिफाइंड गोल होना चाहिए. एंड अगेन, इफ द गोल्स इज डिफाइंड, इट विल लीड टू द टीम यूनिटी. टीम जो है वो यूनिटी होगा ना. अगर गोल का पता ना हो हर एक को, तो फिर जो है अपनी मर्जी से काम करेगा, उनके दरमियान जो है फिर यूनिटी नहीं होगी. ठीक है. सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियरली डिफाइंड गोल्स, रूल्स. ठीक है, कि if a team rules are clearly defined, then all team members know what their job is. ठीक है, अगर गोल डिफाइन है, रूल्स डिफाइन है, तो हर पर्सन को पता होगा ना कि हमारा जॉब क्या है, मेरा एक्टिविटी क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. ठीक है. डिफाइनिंग रूल्स जो है, दैट इज लीडिंग टू द इफेक्टिव सोल्यूशन. अगर किसी को अपनी रूल्स का पता ना हो, तो फिर वो जो है एक्टिवली काम नहीं कर सकता. ये रोल है, ओ वाला. ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रोल, RUL जो है वो तो उसूल को कहते हैं ना, जो कानून होता है. या फिर ये ROL है. ठीक है, माइंड में रखे, ROL मीन रूल. कि एक प्रोजेक्ट में या एक टीम में एक पर्सन का क्या रोल होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी. So again, that is the responsibility of the project manager to assign the right job to the right person. ठीक है. तो हर एक को अपना स्किल और टैलेंट यूज करने का पता होगा ना कि मेरा जॉब क्या है. ठीक है. नेक्स्ट जो स्किल है, दैट इज ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन. अगेन, द टीम मस्ट बी इफेक्टिव if there is open communication among the project manager, yeah, the senior people and the workers. ठीक है. अक्सर क्या होता है, लेबर्स जो है या वर्कर जो होते हैं, वो बॉसेस के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते ना, तो फिर वो किसी प्रॉब्लम के बारे में उनसे पूछते भी नहीं. तो अगर वो किसी प्रॉब्लम के बारे में ना पूछे, तो ऑब्वियसली दे विल डू मिस्टेक्स. और अगर वो मिस्टेक करे, तो क्या होगा, प्रोजेक्ट का गोल और रिजल्ट इफेक्ट होगा. सो देयर विल बी ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन अमंग द टीम मेंबर. ठीक है. द इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर हाई परफॉर्मेंस टीम. ठीक है. जिस तरह हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट प्रॉब्लम एराइज हो जाते हैं प्रोजेक्ट में. ठीक है. तो वो प्रोजेक्ट प्रॉब्लम जो होते हैं, उससे फिर हाईली रिस्क क्रिएट होते हैं इफ देयर इज पुअर कम्युनिकेशन या इफ देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर में, जिस तरह हमने डिस्कस किया, अगर वो उसमें लिसनिंग एबिलिटी नहीं है, वो बात को नहीं सुनते, तो फिर टीम मेंबर्स उनको नहीं कहेंगे ना प्रॉब्लम्स के बारे में. सो अगेन, इट विल अफेक्ट द रिजल्ट्स. So open communication encourage the team member to express their points. या इस तरह भी होता है ना कि अक्सर एक पॉइंट होता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर के माइंड में नहीं होता, लेकिन वर्कर और लेबर के माइंड में होता है. तो अगर इस तरह एक पॉइंट है जिससे प्रोजेक्ट का गोल जो है वो ज्यादा इफेक्टिव और इफिशिएंट हो सकता है, सो देयर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन. अगर ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, तो फिर वो नहीं बता सकते ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है. सो ओपन कम्युनिकेशन encourage the team member to express their points of view and to give the information which can make the team more effective. And also there will be clear communication which ensure the messages are understood by speakers and listeners. मीन एक ओपन कम्युनिकेशन है और एक क्लियर कम्युनिकेशन है.
ओपन ये है कि मीन ये एक पर्सन जो है वो अपने पॉइंट को एक्सप्रेस कर सके, लेकिन अंडरस्टैंडेबल एक्सप्रेस कर सके। तो ये ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। ऑल्सो देयर विल बी टू वे कम्युनिकेशन। इस तरह नहीं है कि एक बंदा कह रहा है और बाकी बंदे नहीं कह रहे, ठीक है। या अगर सपोज एक वर्कर है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर को कह रहे हैं और वो रिस्पॉन्स में कुछ नहीं कह रहा, there must be two-way communication. So again, the good listening, yeah, the good communication skills can lead to a successful project team. Okay. Also, that is the responsibility of the project manager to give attention to the non-verbal communication. Non-verbal communication का पता है ना, अक्सर लोग जो है अपनी एक्टिविटीज से या बिना कुछ कहे इस तरह कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। So the project manager must have the ability, yeah, must give the attention to the non-verbal communication. Again, it will we can say that lead to a successful project team. ठीक है। Similarly, effective decision making है, decision making is effective when the team is aware of and uses many methods. ठीक है। सपोज अगर एक गोल अचीव करना है, एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ठीक है। सो सपोज उस गोल को आप डिफरेंट मेथड से अचीव कर सकते हैं, देन सेलेक्टिंग द बेस्ट सुटेबल सॉल्यूशन, दैट इज द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। सो अगेन, if there is open and clear communication, then you can do the effective decisions, and it will result is a successful project team, ठीक है। सिमिलरली बैलेंस पार्टिसिपेशन है। अगर एक टीम में 2 बंदे काम कर रहे, 3 बंदे काम नहीं कर रहे, तो टीम जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। बैलेंस पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। सो इफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीम कैरेक्टरिस्टिक, एज वी हैव डिस्कस्ड कि कम्युनिकेशन जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन द पार्टिसिपेशन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। विदाउट पार्टिसिपेशन यू डू नॉट हैव अ टीम, फिर जस्ट a group of body होगा, it will be a group of bodies, it will not a team, ठीक है। बैलेंस पार्टिसिपेशन ensure that everyone on the team is fully involved, ठीक है। it does not mean that if you have 5 people each is speaking 20% of the time, mean बातें नहीं करना, काम करना है। talking is not necessarily a measurement of participation, ठीक है। बात जो कहते हैं ना वो पार्टिसिपेशन नहीं है, एक्टिव वर्किंग है। एंड वी नो दैट द पीपल हु टॉक अ लॉट एंड से नथिंग, समझ आ रहे हैं? पीपल हु टॉक अ लॉट से नथिंग, ठीक है। सो इट मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल इज कंट्रीब्यूटिंग व्हेन इट्स अप्रोप्रिएट। सपोज अगर 5 बंदे हैं ना, जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो है 20% बातें करे, ठीक है। इट मीन्स दैट कि हर एक बंदा कंट्रीब्यूट करे जब जरूरत हो, लेकिन मस्ट कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। सो अगर एक टीम के ऑल मेंबर जो है एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, देन इट विल बी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट टीम। 6 नंबर जो है दैट इज वैल्यूड डाइवर्सिटी, ठीक है। वैल्यूड डाइवर्सिटी मीन्स recognizing the differences between people, ठीक है। value diversity mean that is the heart of building a team, ठीक है। mean suppose अगर आप mean that is not based on the gender and race, it includes how people think, what experience they bring and their style, इन लोगों में आप डिफरेंसेस को देखें, बिकॉज डिफरेंसेस इन टीम मेंबर्स जो है दैट इज अ वैल्यूएबल एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जरूरी नहीं है कि आप 50% मेल को हायर कर ले और 50% फीमेल को हायर कर ले, ठीक है। डाइवर्सिटी जो है दैट इज बियॉन्ड द जेंडर एंड रेस, इट जस्ट इंक्लूड
how people think, what experience they have, and what are their style. A diversity means thinking, ideas, methods, experience. Okay, so you will have to recognize the differences among the team member and then utilizing them in the right place. Managing the conflict, ठीक है, अगर टीम में कोई conflict आ जाए, so how it will be resolved, how it will be managed. अगर टीम में दो बंदे जो है आपस में झगड़ा कर लेना, फिर पूरा टीम इफेक्ट होगा. सो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट टीम वही होगा जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की एबिलिटी हो. ठीक है, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट जो है दैट इज एसेंशियल टू अ टीम क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी. अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए ना, it will directly impact the creativity and productivity of the team, because most people dislike conflict. Okay, so the difference is the effective team manage the conflict constructively. तनकीद बराई तामीर करना है ना, तनकीद बराई तनकीद नहीं करना. ठीक है, सो मोस्ट इफेक्टिव टीम कब होगा? when the team manage the conflict constructively. ठीक है, या the effective team are looking into conflict positively. अगर conflict आ जाए तो आपने उसको positively देखना है. अगर conflict है तो कोई मसला होगा ना, तो उसको आप positively solve कर ले, again the goal will be effective, और टीम जो है वो सक्सेसफुल होगा, वो इफेक्टिव होगा. ठीक है, नेक्स्ट जो है पॉजिटिव टीम एटमॉस्फेयर है. अगेन द टीम विल बी सक्सेसफुल if there is a climate of trust and openness. That is a positive atmosphere जिसको कहते हैं, positive environment जिसको कहते हैं, friendly environment जिसको कहते हैं, जिसमें हर एक बंदा जो है दूसरे पे ट्रस्ट कर सके एंड एवरीवन जो है वो ओपन हो. ठीक है, नथिंग विल बी हिडन. Positive atmosphere indicate that member of the team are committed and involved. अगर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है ना, तो टीम मेंबर्स कमिटेड होंगे, इन्वॉल्व होंगे एक्टिविटीज में. ठीक है, इट मींस दैट द पीपल्स आर कंपैटिबल विद वन अनदर. ठीक है, एंड they will take risk and they will find the effective solution for the problems. ठीक है, and also they will love their working place. अक्सर environment ठीक नहीं होता तो फिर लोग जो है वहां पे काम नहीं करना चाहते. कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है most important for the successful project team. That is directly related to having a positive atmosphere and cooperative relationship. ठीक है, मीन अगर एक टीम मेंबर को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बाकी मेंबर्स को उसकी सोल्यूशन में हेल्प करना चाहिए. या अगर एक पर्सन की पर्सनल प्रॉब्लम आ जाए, घर में प्रॉब्लम आ जाए, तो बाकी टीम मेंबर ने उनके साथ कोऑपरेट करना है. अगर आज एक के साथ नहीं करेंगे तो कल वो आपके साथ फिर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे. सो टीम मेंबर नो दैट दे नीड वन अनदर स्किल. इस तरह भी होता है ना कि अक्सर एक पर्सन को दूसरे की स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं. इलेक्ट्रीशियन को सपोज प्लम्बर की स्किल्स रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होते हैं. समथिंग टुगेदर दैट दे कुड नॉट डू वेल अलोन. मीन टुगेदर वो कुछ कर सकते हैं लेकिन अलोन वो कुछ नहीं कर सकते. सो कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए अमंग द टीम मेंबर. ठीक है, लास्ट वन जो है दैट इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप. नाउ दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर्स या द प्रोजेक्ट मैनेजर कि वो उनके साथ पार्टिसिपेट करे डिफरेंट एक्टिविटीज में, उनको गाइड करे बोथ सोशली, कंसेप्चुअली एंड टेक्निकली, बिकॉज उनका नॉलेज स्ट्रांग होता है. सो द पार्टिसिपेटिव लीडरशिप block is not at the top of the model because it is the most important. I mean, ये एक टीम में पार्टिसिपेटिव लीडरशिप जो है या लीडरशिप जो है ये टॉप पे नहीं होगा, ये इन्वॉल्व होगा एक्टिविटीज में. ठीक है,
Participative leadership means that leaders share the responsibility and rules regulation, define the goals involved in it with the other team members. Okay? And also they will have fair support for their team members, will create the atmosphere of trust and openness, will clearly guide, train the workers या subordinates. ठीक है, सो ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है. अगर किसी टीम में ये हो तो वो टीम जो है वो सक्सेसफुल टीम कंसिडर होगा. ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर है. कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन आजकल जो है मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ठीक है, या whenever या wherever you are working, तो आप एक ग्रुप में काम करेंगे, एक टीम में काम करेंगे, तो कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए कि आपका टीम स्ट्रांग हो, या अगर आप लीड करें तो आपके पास कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर है तो आपके पास कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए. ठीक है, now let's discuss the relationship versus task management. Again, that is the responsibility of the manager. See, जिस तरह हमने स्टार्ट में डिस्कस किया हुआ है ना कि मैनेजमेंट क्या है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग व्हाट यू हैव टू डू व्हाट यू वांट. तो आपके पास क्या है? रिसोर्सेस है. आप क्या चाहते हैं? अचीव योर गोल्स. नाउ यूजिंग द रिसोर्सेस टू अचीव द गोल, दैट इज मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल, टूल्स, टेक्निक्स टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज. मीन प्रोजेक्ट के डिफरेंट एक्टिविटीज होंगे ना, तो उन एक्टिविटीज से क्या होगा? जब वो कंप्लीट हो जाए, गोल अचीव होगा. सो द एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज, स्किल एंड टेक्निक्स टू इफेक्टिवली अचीव द गोल, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. अच्छा, इसका जो हेड होता है उसको हम फिर प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं. ठीक है, अब प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेगा वो दो टाइप्स के हैं. either the project manager will do the relationship management, either will do the task management. So let's discuss these two terminologies, and at the end I will ask a question that which management is most effective. रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा है या टास्क मैनेजमेंट अच्छा है? देखिए, within the project management there are two types of personalities. जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं ना, दो टाइप्स के होते हैं, रिलेशनशिप ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड. So it is fairly easy to tell the two apart. Aside from having a detailed project schedule, the task oriented manager have acha, just understand the difference between the two terms. Task oriented manager जो होता है, he just want to complete the work. मीन हर दिन उसके लिए एक लिस्ट होता है ना कि आज मैंने ये काम करने हैं, जो भी हो जाए, आई हैव टू कंप्लीट दीज एक्टिविटीज. फर्स्ट मैंने ये एक्टिविटी करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है. फिर रिसोर्सेज का ख्याल नहीं रखते, टीम का ख्याल नहीं रखते. जस्ट द टास्क ओरिएंटेड मैनेजर हैज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एंड दे वांट टू अकम्प्लिश दैट वर्क्स ऑन द डे. एंड एट द एंड वो क्या करते हैं? वो चेक करते हैं ना कि ये एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई कि नहीं. वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, टास्क ओरिएंटेड होता है. या द टास्क ओरिएंटेड मैनेजर इज नॉट taking care of the people, the environment, the society, the organization. He just want to complete the list of activity which he want. दूसरा जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड मैनेजर जो होता है, he schedule the guideline,
and they are more likely to have a list of people to call today. Relationship oriented manager का फोकस क्या होता है? टू डील विद मोर पीपल. वो एक्टिविटी को नहीं देखते, वो लोगों को देखते हैं, दैट हाउ द पीपल आर इन्वॉल्व एंड हाउ मच ही हैव या शी हैज डील विद द पीपल. तो बजा रहे. अच्छा, रिलेशनशिप ओरिएंटेड मैनेजर्स क्या करते हैं? आर ग्रेट एट बिल्डिंग एंड कोहेसिव टीम. रिलेशनशिप मैनेजर जो होते हैं ना, वो एक ग्रेट, इफेक्टिव एंड कोहेसिव टीम डेवलप करता है. लोग उसके साथ खुश होते हैं ना, वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है, लोगों के साथ ताल्लुक बनाते हैं, ओपन होता है, क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं, ओपन कम्युनिकेशन करते हैं. मीन हर कोई उसके ऑफिस में आता जा सकता है. समझ आ रहा है ना? ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड मैनेजर होते हैं. एडवांटेजेस क्या होंगे? ग्रेट टीम बिल्ट होगा, इफेक्टिव टीम बिल्ट होगा, कोहेसिव टीम बिल्ट होगा. द पीपल विल लाइक टू वर्क विद द पर्सन. क्या कहते हैं? बहुत नाइस बंदा है ना, अच्छा बंदा है, इजीली कम्युनिकेट करता है. When planning our project, they take in the big picture and appoint people or group to handle the detail. Consensus is more as a major tool in their arsenal. ठीक है, वो जो एग्रीमेंट करते हैं ना, जनरल एग्रीमेंट होता है या एग्री अपॉन समथिंग, ठीक है, वो लोगों को देखते हैं. सिंपली वी कैन से दैट दे मेक देयर टीम फील कंफर्टेबल. उनके हाँ क्या होता है? डेडलाइंस आर नॉट इंपॉर्टेंट. इन टास्क ओरिएंटेड मैनेजर वो डेडलाइन इंपॉर्टेंट होता है. वो एक एक्टिविटी दे देते हैं ना किसी वर्कर को, फिर जो भी हो जाए उसने वो एक्टिविटी कंप्लीट करना है और प्रोजेक्ट मैनेजर ने उसको चेक करना है. दैट इज द टास्क ओरिएंटेड मैनेजर. रिलेशनशिप ओरिएंटेड मैनेजर जो होते हैं उसके पास क्या होता है? डेडलाइन इंपॉर्टेंट नहीं होता. वो जस्ट ये देखते हैं कि प्रोग्रेस चल रहा है, बस ठीक है, लोग खुश हैं, काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस चल रहा है. दैट इज ओरिएंटेड मैनेजर. टास्क मैनेजर क्या करते हैं? वो कहते हैं कि लोग खुश हो या ना हो, काम कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है. A good day for relationship oriented manager include resolving conflict and hold productivity meeting. रिलेशनशिप ओरिएंटेड मैनेजर की फोकस क्या होता है? कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर ले, लोगों के साथ डील कर ले, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग कर ले, लोगों के साथ इंगेज हो, रिलेशनशिप हो, हर एक जो है आपस में आते जाए. ठीक है. टास्क ओरिएंटेड मैनेजर क्या होता है? दे आर गुड एट डायरेक्टिंग पीपल. वो लोगों को डायरेक्ट करते हैं एंड मूविंग द प्रोजेक्ट फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप. मीन एक काम करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, विद इन द टाइम. समझ आ रहे हैं? उसने शेड्यूल बनाया होता है और लोग खुश हो या ना हो, उसने वो एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. On any given day, they can call you the status of each sub project, confirm the project on schedule. ठीक है, वो शेड्यूल फोकस्ड होता है, वो डेडलाइन फोकस्ड होता है. रिलेशनशिप मैनेजर जो होते हैं वो डेडलाइन और शेड्यूल फोकस नहीं होता. ठीक है. टास्क ओरिएंटेड मैनेजर जो होते हैं, दे नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द टीम but might not be able to remember the names. इसका एक ये भी आ जाता है कि अगर एक रिलेशनशिप मैनेजर है, उनको हर एक पर्सन की उसका नेम याद होगा, उसकी बैकग्राउंड याद होगी, उसकी फैमिली कंडीशन उसको पता होगा, बिकॉज वो क्या है, रिलेशनशिप बनाते हैं ना लोगों के साथ, ओपन होता है कम्युनिकेशन में, तो हर एक उसके साथ इजीली डील कर सकता है. और टास्क ओरिएंटेड क्या होता है? वो इस तरह भी हो सकती है कि उसको अपनी वर्कर्स के नेम का पता नहीं होता, तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड वो किस तरह होगा फिर, बिकॉज द टास्क ओरिएंटेड मैनेजर इज ओनली फोकसिंग ऑन द एक्टिविटी अचीवमेंट. ठीक है. टास्क ओरिएंटेड मैनेजर जो होता है वो डज नॉट इंक्लूड एनी टू मेनी मीटिंग्स.
but involved in completing the things. रिलेशनशिप मैनेजर क्या करते हैं, वो ज्यादा मीटिंग्स में इन्वॉल्व होता है. टास्क ओरिएंटेड क्या होता है, वो कंप्लीशन या कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, ज्यादा इन्वॉल्व होता है. ठीक है. अच्छा, अब देखिए दोनों के कंपैरिजन. तो now as we have discussed the difference between relationship oriented manager and task oriented manager, so जो बिहेवियर है उसकी टास्क मैनेजर की, so task behavior is when you are action centered. टास्क ओरिएंटेड मैनेजर क्या होगा, एक्टिविटी सेंटर्ड होगा. उसका मरकज क्या होगा, उसके माइंड में क्या होगा, एक्टिविटी होगा, एक्शन होगा, टास्क होगा, द जॉब दैट नीड्स टू बी डन. उनके माइंड में क्या होते हैं कि ये काम करना है बस. ये टास्क ओरिएंटेड का बिहेवियर है. रिलेशनशिप का बिहेवियर क्या है, रिलेशनशिप मैनेजर का, दैट when your action are more centered toward relationship with your people. ठीक है, आपके माइंड में क्या होता है, अपने लोग होते हैं, पीपल होते हैं. ठीक है. टास्क बिहेवियर as we have discussed that the task manager is centered toward the action or task, concentrate on the number of एक्टिविटी कंप्लीटेड, कि कितने एक्टिविटी उन्होंने कंप्लीट की है. वो टारगेट ओरिएंटेड होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, एक्टिविटी सेंटर्ड होता है. टास्क ओरिएंटेड मैनेजर देखते हैं ना कि कितने लोग जो है काम कर रहे हैं, द हैंड्स इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज. समझ आ रहे हैं, बास सेंटेंसेस जो है वो महाविरतन होते हैं ना. वो देखते हैं ना टास्क ओरिएंटेड मैनेजर कि कितने हाथ इन्वॉल्व है काम करने में. ठीक है. और उसकी बेनिफिट्स क्या होते हैं अब टास्क ओरिएंटेड के, उनकी टारगेट्स अचीव हो जाते हैं टाइम पे, दे आर गेट द रिजल्ट्स ऑन टाइम. वो उनका जो जॉब होता है या एक्टिविटी होता है वो क्विकली कंप्लीट हो जाता है. उसके ऊपर कंट्रोल होता है एक्टिविटी पे, रिसोर्सेज जाया नहीं होते, टाइम रिसोर्स. ठीक है, प्रॉफिटेबल होता है टास्क ओरिएंटेड मैनेजर. वो बातों में टाइम जाया नहीं करता, वो विद इन द टाइम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करता है. सो दैट आर द बेनिफिट्स ऑफ द टास्क ओरिएंटेड. मीन टास्क ओरिएंटेड मैनेजर hit targets, get the result quickly, keeps control on the resources. It is a profitable behavior. ठीक है. अच्छा, रिलेशनशिप बिहेवियर जो है, रिलेशनशिप मैनेजर कंसेंट्रेट ऑन पीपल, हेल्पिंग पीपल टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल. ठीक है. वो अक्सर अगर एक मैनेजर के साथ लोग काम करते हैं ना, तो उनकी भी अपने पर्सनल गोल्स होते हैं कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मैंने ऊपर जाना है, हायर पोस्ट पे जाना है. तो टास्क ओरिएंटेड मैनेजर जो है उनको सपोर्ट नहीं करते, उनकी कोचिंग नहीं करते. टास्क ओरिएंटेड मैनेजर का पर्पस क्या होता है कि जस्ट मेरा एक्टिविटी कंप्लीट हो बस. रिलेशनशिप ओरिएंटेड क्या होता है, वो अपने पीपल पे कंसेंट्रेट करते हैं, उनको देखते हैं कि उनकी पर्सनल विशेस क्या है, उनकी गोल्स क्या है, उनमें उनकी हेल्प करते हैं, उनकी बिल्डिंग करते हैं, उनकी कोचिंग करते हैं, हेल्पिंग द पीपल टू अचीव देयर गोल्स. काउंसलिंग करते हैं स्टाफ मेंबर की, बिलीव रखते हैं मेंबर्स पे. ठीक है. तो इसके एडवांटेज क्या होंगे रिलेशनशिप मैनेजमेंट के, द स्टाफ विल लाइक यू. लोग आपको पसंद करेंगे ना, कहते हैं ये अच्छा बॉस है, फ्रेंडली बॉस है, नाइस है, हम उनके साथ गपशप लगाते हैं ओपनली. पीपल विल लाइक यू, दे विल, स्टाफ जो है उनका आप पे कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा. कॉन्फिडेंटली वो आपसे बातें शेयर करेंगे ना, फिर कॉन्फिडेंट होंगे, डरेंगे नहीं.
टास्क ओरिएंटेड मैनेजर से वो कॉन्फिडेंटली शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल्सो देयर विल बी टू वे कम्युनिकेशन। टास्क ओरिएंटेड में वन वे कम्युनिकेशन होगा, ओनली फ्रॉम द मैनेजर। रिलेशनशिप में टू वे कम्युनिकेशन होगा, टीम वर्क जो है वो गुड होगा, सबॉर्डिनेट्स की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम्स को देखे, हमने दोनों की एडवांटेजेस डिस्कस की ना, कि टास्क मैनेजर जो है वी विल गेट द टारगेट या गेट द रिजल्ट ऑन टाइम, द जॉब विल बी क्विकली कंप्लीटेड, देयर विल बी कंट्रोल ऑन रिसोर्सेज, द रिजल्ट्स विल बी प्रॉफिटेबल। सेकंड की रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप की एडवांटेजेस क्या है? द स्टाफ विल लाइक यू, दे विल हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू, there will be two-way communication, the subordinates development will be occur। ये एडवांटेजेस हो गए दोनों के। अब प्रॉब्लम्स क्या है? टास्क ओरिएंटेड की प्रॉब्लम्स क्या है? कम्युनिकेशन उसमें वन वे होगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन उसको कहते हैं, कि जस्ट मैनेजर बात करेगा ना और कोई बात नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड दी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैनेजर। ये उसकी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज टू वे कम्युनिकेशन हमने स्टार्ट में डिस्कस किया ना, कि गुड टीम क्या होगा जहां पे टू वे कम्युनिकेशन। फीडबैक नहीं मिलेगा उसको, बिकॉज कोई बात ही नहीं करेगा ना उस तरह मैनेजर के साथ। देयर विल बी लिटिल और नो फीडबैक फ्रॉम द स्टाफ, पीपल डू नॉट गेट डेवलप, उनका मॉरल और मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगी ना, वो स्ट्रेस्ड होंगे, तो फिर वो जॉब में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है उसमें यह है कि मैनेजर जो होते हैं वो पीपल के प्रॉब्लम में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो उसकी रिजल्ट टाइम पे अचीव नहीं होंगे। समटाइम द रिलेशनशिप मैनेजर मिस द टारगेट, टारगेट उनके मिस हो जाते हैं ऑन टाइम। स्टाफ मेंबर जो है वो कहते वो अपना बंदा है ना, ठीक है। स्टाफ मेंबर्स विल सी यू एज वन ऑफ देम, वो आपको फिर एज अ मैनेजर नहीं देखते, वो कहते हैं बड़ा ये तो बस अपना ही बंदा है, अपने लेवल का बंदा है, बात ओपन कर सकते हैं उसके साथ आप। समझ आ रहे हैं ना, वो लेवल खत्म हो जाता है फिर मैनेजर का और सबऑर्डिनेट का, ये डिसएडवांटेज है। सिमिलरली अक्सर इस तरह होता है कि कुछ स्टाफ मेंबर जो है फिर आपकी बात नहीं मानते, ओपन हो जाते हैं ना ज्यादा, फिर सीरियस नहीं लेते, ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। अब आप लोग बताएं कि कौन सा जो है वो हमने डिस्कस की ना, बिहेवियर क्या होते हैं, कंसंट्रेशन क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। पास बिहेवियर क्या होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, उसमें कमांडिंग होता है। रिलेशनशिप क्या, इसमें लिसनिंग है, रिलेटिंग रिलेशन है, काउंसलिंग है। आपके ख्याल में कौन सा बेस्ट है आप? जी, दोनों की हमने एडवांटेज डिस्कस की, डिसएडवांटेज डिस्कस की, बेनिफिट्स भी डिस्कस की। जी हसीब। सर ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड मैनेजमेंट। तो उसमें आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं, प्रोजेक्ट जो है टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव जो है वो अक्सर मिस हो जाते हैं, लोग आपकी बात नहीं मानते फिर। सर लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो इफ़ेक्टिवली अचीव हो जाता है अगर रिसोर्सेज है, अगर हम उनको देखें तो टास्क ओरिएंटेड में वो यूज़ होते हैं, लेकिन हाँ उसमें वो ऑब्जेक्टिव, अगर फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको कंप्लीट कर रहे, तो उसमें से फिर रिसोर्सेज को वो गलत तरीके से भी इस्तेमाल हो सकते हैं या कम ज़्यादा भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जबकि रिलेशनशिप में वो उन लोगों लेबर्स के साथ मिलके उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा गुड, मतलब ये है कि आपने प्रॉपरली सुना। एनीवन एल्स? जी हारिस, आपके ख्याल क्या है? जी और सीआर?
मुराद, आप बताएं। सर अगर हम देखें तो ये टास्क ओरिएंटेड मैनेजर जो होते हैं तो कंपनी के लिए पाकिस्तान जैसी कंट्री में ये अच्छा होता है। अगर वो हाँ अपनी टीम पे ज़्यादा स्ट्रेस भी डाले और वो उनसे तंग किया जाए तो अगर छोड़ दे तो और भी बहुत से लोग अवेलेबल होते हैं ना, तो इसके हाँ टास्क भी गोल्स जो है वो अचीव होते हैं और लोगों की भी उसे के पास जो है वो कमी नहीं होती ना। और अगर जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं तो उसमें जो टास्क गोल जो है वो आप अचीव नहीं कर सकते ना, वो अक्सर वक्त अवकात में अचीव नहीं होती। और दूसरी बात जो है कि वो मैनेजर की फिर वो अपनी जो लेवल होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो जो कदर होती है टीम के दिल में तो वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो जो टास्क अचीव करना होता है वो उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, अली रजा। जी, मेरे ख्याल में मुराद जो है वो टास्क ओरिएंटेड मैनेजर होगा, और हसीब जो है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड मैनेजर होगा। इस तरह है ना? नहीं सर, मैं अगर होता तो मैं रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता लेकिन यह अभी जो ज़माना आ चुका है तो हर कोई जो है वो पैसे की पुजारी बन चुका है ना सर, इसीलिए अच्छा, आप मैंने देखें, सी, if you are too much inclined toward the relationship style of management, so that will find it difficult to change your behavior and decision, because you feel that you will be uh, aggressive, फिर हो सा काम नहीं करता ना अगर आप ज्यादा जो है इंक्लाइंड है टुवर्ड द रिलेशनशिप। ठीक है। और सिमिलरली अगर आप ज्यादा टास्क ओरिएंटेड है तो फिर अगर आप कोई फ्रेंडली बात करे या फनी बात करे या कोई लतीफा करे तो लोग हंसेंगे नहीं आपकी। समझ आ रहे हैं ना? सपोज अगर आप ज्यादा टास्क ओरिएंटेड है ना, तो अगर एक टाइम में आपका मूड अच्छा है और आप कोई इस तरह फनी स्टोरी बताएं तो लोग हंसेंगे नहीं, कहेंगे कि ये क्या हो गया इस बंदे को, अभी तक तो ये इस तरह नहीं था। और अगर आप ज्यादा रिलेशनशिप है ओरिएंटेड है तो फिर अगर आप गुस्सा करेंगे, अगेन वो लोग उसको सीरियसली नहीं लेंगे। तो इट मे बी डिफिकल्ट देन टू चेंज योर बिहेवियर। अगर आप एक साइड पे है ना, रिलेशनशिप है या टास्क है, तो फिर आप जो बिहेवियर चेंज करेंगे वो डिफिकल्ट होता है। ठीक है। तो इफेक्टिव मैनेजर क्या होगा? इफेक्टिव मैनेजर मस्ट हैव द एबिलिटी टू स्विच बिटवीन द टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर। मीन आपने ब्रिज पे होना होगा, आपने सिचुएशन को देखना है कि कहां पे आपने एज अ टास्क ओरिएंटेड बिहेव करना है और कहां पे आपने रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेव करना है। इमेजिन दिस इज अ ब्रिज विद ईच टाइप ऑफ बिहेवियर, हाफ इस साइड पे और हाफ उस साइड पे। ठीक है। the effective manager must have the ability to demonstrate both task and relationship इमोशंस, उसको एक्सप्रेस कर सके। टास्क ओरिएंटेड मीन इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन आप दे दे। रिलेशनशिप ओरिएंटेड मीन आप रिस्पॉन्ड करें, टॉकिंग करें, काउंसलिंग करें, लिसनिंग करें लोगों की। देन इट विल बी एन इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है। तो आप अब ये स्किल आपके पास होना चाहिए कि आप दोनों बिहेवियर्स में किस तरह स्विच करते हैं, और सबऑर्डिनेट्स को ये पता ना चले कि आप ज्यादा टास्क ओरिएंटेड है या रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। क्लियर? यस सर। अच्छा, जस्ट लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम। आपके ख्याल में क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में? जी, एनीवन? अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो
एक जनरल बैकग्राउंड था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उसमें डिफरेंट पोजीशंस पे लीडर्स का रोल क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, मैनेजर क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमने ये डिस्कस की। अब हम प्रोजेक्ट की तरफ आ रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है, ये इसका एक डिफाइंड स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है ना। प्रोजेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्टिव विल बी क्लियरली डिफाइंड विच यू हैव टू अटेन, और उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा। प्रोग्राम जो है, दैट इज अ जनरल टर्म which can be a group of different project। ठीक है, सपोज अगर आप एक प्रोजेक्ट अचीव कर ले, दूसरा प्रोजेक्ट अचीव कर ले, तीसरा प्रोजेक्ट अचीव कर ले, तो आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। प्रोग्राम जो है, दैट इज अ जनरल टर्म, दैट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट which can be managed in a coordinated way to obtain the benefits which cannot be achieved by कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इंडिविजुअली। सपोज अगर आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है लेकिन प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। जब रिलेटेड प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए तो प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है ये एक टेम्पररी या वन टाइम टास्क होता है which is undertaken to create a unique product या a unique service which brings about beneficial changes। ठीक है, project manager work with the project sponsor, project team and other people। See, एक प्रोग्राम मैनेजर होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। प्रोग्राम मैनेजर जो है वो ग्रेटर है प्रोजेक्ट मैनेजर से। ठीक है, program manager oversees programs and upon act as a bosses for project managers because एक प्रोग्राम के अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, अच्छा, अब प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? सो जिस तरह हमने डिस्कस की कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फोकस क्या होता है, सिंगल ऑब्जेक्टिव। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस स्ट्रेटेजी। आप सपोज अगर आप देखें ना, ये एक इंडस्ट्री है, सपोज वो चिप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका एक प्रोग्राम है चिप्स का। अब चिप्स के डिफरेंट टाइप्स है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, लेज है, दूसरा कौन सा है, नेम में भूल गया। ठीक है, दूसरा सपोज चिप्स है, तीसरा टाइप है, चौथा टाइप है। तो अब हर एक टाइप जो है एक प्रोजेक्ट है और ओवरऑल वो एक प्रोग्राम के अंडर चल रहे हैं। सिमिलरली अगर आप देखें ना, बीएससी आप कर रहे हैं तो ये एक प्रोग्राम है। अब इसमें हर एक सेमेस्टर आप ले लें या हर एक 1 ईयर आप ले लें, ये आपका एक प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट जो होगा वो सिंगल ऑब्जेक्टिव होगा और प्रोग्राम जो होते हैं ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होती है। इसकी स्कोप नैरो होती है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट टर्म होता है। प्रोग्राम का जो स्कोप होता है वो वाइड रेंज होते हैं, इसमें डिफरेंट फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। प्रोजेक्ट की जो बेनिफिट्स है दैट आर डिटरमाइंड इन एडवांस, पहले से पता होता है कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो हमें ये गोल अचीव होगा। इसकी जो डिसीजंस है या इसका जो बेनिफिट्स है दैट कैन बी अकर ड्यूरिंग द प्रोग्राम। जब एक एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है ना तो आपको प्रोग्राम की बेनिफिट्स का पता चल जाता है। इस तरह है कि एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम भी सक्सेसफुल होगा। समझ आ रहा है? जब सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए तो प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट में जो है फ्यू और क्लियरली ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रोग्राम में मेनी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसका टाइम डिफाइंड होता है, प्रोजेक्ट का प्रोग्राम का टाइम डिफाइंड नहीं होता, लूजली डिफाइंड होता है। ठीक है, चेंजेस इसमें अवॉइड होते हैं, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। प्रोग्राम में आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और आप देखते हैं प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव को वो अचीव नहीं हो रही, तो तीसरी प्रोजेक्ट को आप चेंज कर लें। ठीक है, इसका प्रोजेक्ट कब सक्सेसफुल होगा? जब वो विद इन टाइम एंड विद इन बजट अचीव हो जाए।
प्रोग्राम कब सक्सेसफुल होगा? जब आपका एट द एंड मिशन अचीव हो जाए। ठीक है, प्रोजेक्ट का जो प्लान होता है वो स्पेसिफिक होता है, डिटेल्ड होता है और बाउंडेड होता है, मीन उससे आप बियॉन्ड नहीं जा सकते। प्रोग्राम का जो प्लान होता है वो हाई लेवल का होता है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रोग्राम मैनेजर होगा, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। सो प्रोग्राम मैनेजर क्या करते हैं? अगेन विल मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोग्राम, will schedule different projects. Project manager will plan the project activities small level पे ना, which is given by the program manager. program manager क्या करेंगे? different projects को schedule करेंगे। project manager क्या करेंगे? वो प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को शेड्यूल करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम मैनेजर विल डिफाइन TOR, टर्म ऑफ रेफरेंसेस जो होते हैं फॉर द प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेंगे? विल इंप्लीमेंट द TOR, जो TOR बनाए हुए हैं प्रोग्राम मैनेजर ने, प्रोजेक्ट मैनेजर विल इंप्लीमेंट इट। प्रोग्राम मैनेजर स्टार्ट, स्टॉप एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। वो मिनी प्रोजेक्ट मैनेजर का हेड होता है ना, तो वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करते हैं? वो एक प्रोजेक्ट को रन करते हैं और उसकी रिपोर्टिंग करते हैं प्रोग्राम मैनेजर को। ठीक है, प्रोग्राम मैनेजर मैनेज द प्रोग्राम लेवल रिस्क एंड इश्यूज, और प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज द रिस्क एंड इश्यूज एट द प्रोजेक्ट लेवल। The program manager set the policies for the projects. Project manager run the project according to the policy already provided. तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये मिडल लेवल मैनेजमेंट है। समझ आ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट, वो प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, वन थिंग लेट्स सी, एज वी हैव डिस्कस्ड, प्रोजेक्ट क्या है? ये एक यूनिक पर्पस एक्टिविटी होगा, सिंगल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी होगा, वेल डिफाइंड होगा, विद इन द टाइम स्पेन होगा, विद इन द बजट होगा, टेम्पररी होता है। ठीक है, और require the resources, should have a primary customer or sponsor. ठीक है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर मेन डायरेक्शन और फंड प्रोवाइड करते हैं। नाउ हर एक प्रोजेक्ट में 3 कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एक स्कोप है, एक टाइम है, एक कॉस्ट है। मीन हर प्रोजेक्ट में ये 3 चीजें होते हैं कि क्या करना है, कब कंप्लीट करना है, और इसका कॉस्ट क्या होगा। Now managing these 3 things, that is the responsibility of the project manager. First, the project manager will know about what work will be done, when it will be completed, and how much it will cost. So it is the project manager duty to balance these 3 upon competing goals. Mean उसकी गोल ये होता है कि प्रोजेक्ट को विद इन टाइम, विद इन बजट अचीव करना है। इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं प्रोजेक्ट के, या ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स कहते हैं इसको। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कि आपने राइट रिसोर्सेस को राइट टाइम पे यूटिलाइज करना है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, या दीज आर द कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है,